Good morning, students. I hope you all are fine and are safe with your family members. In this music session, we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 2, Rag Yaman. From now onwards, we'll start with ragas. So the first rag is Rag Yaman, which is considered the king of all the rajas. I'll give you a short description, which is also known as Rag Parichay. So the first point is Thaat. Which Thaat it is originated from? So it is originated from Kalyan Thaat. The characteristic is only Tivra Madhyam is used and rest all the swaras are Shuddha. Okay, now next term is Vadi and Samvadi, which you'll encounter in all the ragas coming further. So what is a Vadi Swar? Vadi Swar is considered the most important swar in any rag. But it does not refer to the most played note, but rather refers to a note of special significance. We can also call the Vadi Swar as the king of kingdom. It is repeated the greatest number of times and singer can pause for an ample amount of time. Okay, so this was Vadi Swar, and Samvadi Swar is the second most important. After Vadi Swar, it is Samvadi Swar, but Samvadi Swar is important than the other swaras. So Vadi, Samvadi, and then the other swaras come. Okay. Now, what is the Gayan Samay? That is, when should you sing this rag? That is Ratri Ka Pratham Prahar. Now, new terms you'll encounter further are Vadi Swar. I have already explained. Samvadi also. What is Pakad? A small group of swar by which a rag is identified. Means एक swar का you will sing and you can easily tell which rag it is. Then it is known as pakad. Then alap, different swar used in rag. आलाप मतलब जब हम लोग स्वरों को गाते हैं लेकिन विलंबित लय में. लय भी बहुत टाइप के होते हैं. I'll teach you further. बट विलंबित लय जब हम लोग स्लो रिदम में स्वरों को गाते हैं जो कि राग में यूज़ होते हैं, उन्हें हम आलाप बोलते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द राग आई वुड लाइक टू टीच यू वन मोर टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सप्तक. You already know that there are 7 Shuddha Swaras in Indian classical music, that is Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. इन्हीं स्वरों में म्यूजिकल स्केल्स होते हैं. सो द बेसिक सप्तक इज कॉल्ड द मध्य सप्तक. मध्य सप्तक मीन्स जो हम लोग नॉर्मल शुद्ध स्वर गाते हैं, सा रे ग मा पा धा नी. सो दिस इज द मध्य सप्तक. ओके, मध्य सप्तक मतलब जो स्वर हम लोग गाते हैं. शुद्ध स्वर की ही बात हम लोग कर रहे हैं. सप्तक मतलब ही शुद्ध स्वर होते हैं. ओके, नाउ दिस वॉज मध्य, सा से लेके नी तक इट वॉज मध्य सप्तक. नाउ लोअर ऑक्टेव के जो गाने होते हैं, विच इज़ ए लोअर, मंद्र सप्तक क्या होता है, विच इज़ ए लोअर ऑक्टेव देन द मध्य सप्तक. ओके, लाइक सा नी ध पा. ओके, सो दिस इज नोन एज मंद्र सप्तक. और most important point, mandra saptak is denoted by a dot beneath the swar, that is ni. Like here you can see sa के बाद ni dha, ni के नीचे there is a dot, so this swar is of mandra saptak. Mandra saptak means sa ni dha pa and so on. Okay, now what? Mandra Saptak. And the last one is Tar Saptak, which is the upper octave. The Tar Saptak, like Sa Re Ga. This is Madhya Saptak. Ma Pa Dha Ni Sa. This is Madhya. Now Tar. Sa Re. So this is your tar saptak, and it is denoted by a dot above the swar. Like you can see in alap number 4, ये नी रे सा you can see. So रे के ऊपर you can see a dot which denotes the tar saptak. So a short summary of saptak. Saptak means क्या होता है कि सातों स्वरों को हम लोग सप्तक बोलते हैं. सा रे गा मा पा धा नी. सप्तक
तीन टाइप के होते हैं। मध्य विच इज सा रे ग मा पा धा नी, दिस इज मध्य सप्तक। नाउ मंद्र जो लोअर ऑक्टेव में होता है, सा नी ध पा एंड सो ऑन, सो दिस इज मंद्र। नाउ तार, सा रे ग मा एंड सो ऑन, सो दिस इज तार सप्तक। मध्य सप्तक में कोई साइन नहीं होता है। मंद्र सप्तक डॉट लगता है स्वरों के नीचे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया आलाप नंबर 1 में, जो सेकेंड नोट है नी के नीचे डॉट दिया हुआ है। एंड तार सप्तक में स्वरों के ऊपर डॉट लगता है। लाइक इन आलाप नंबर 4 यू कैन सी नी रे सा, ओके, सो रे के ऊपर डॉट है तो इट डिनोट्स तार सप्तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट सप्तक। नाउ मूविंग ऑन टू द राग। So today we are going to learn Rag Yaman. So first we'll do the Aro, Avro and Pakad. You know the Aro, when the swar which is used in any Rag is arranged in ascending order, that is from lower notes to higher notes, then Aro, higher notes to lower notes, Avro, and Pakad स्वरों का वो ग्रुप जिससे में राग की पहचान होती है। So let us begin with Rag Yaman. सा, सबसे पहले you need to practice sa, which is very important. So you need to rest on sa, okay, for some time. Sa. Now let us begin. Ni re ga ma pa dha Aro once again, ni re ga ma pa dha ni sa. So this was your Aro. Now Avro, sa ni da pa ma. So this is your Avro. Okay. Now you can see every swar is Shuddh except Ma, which is Tivra, जो कि कल्याण थाट की कैरेक्टरिस्टिक है ना? So this rag belongs to Kalyan That. I hope now That is more clear to you all. So this was Aro, Avro. Now Pakad. जब आप ये सिर्फ पकड़ गाएंगे ना, तो anybody who has the knowledge of music will come to know which rag you are singing. Okay, so let's begin. Ni re ga. As you already know, Vadi swar is Ga, है ना? Vadi swar is Ga. So Ga is used several times, and see, I'm giving a short pause. I'm giving a pause in swar Ga. So this is only what I was talking about, like Vadi swar. Ni re ga pa ma ga. Again pause. Re ga re ni. सी संवादी में भी हम लोग को रुकना है, लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग वादी स्वर में रुकते हैं. नी रे सा. ओके, अगेन पकड़. नी रे गा पा मा गा रे गा रे नी रे सा. So this was your Aro, Avro, Pakad. Okay, now moving on to the Alap. There are 4 Alap. Now आप लोग देख सकते होंगे कि कुछ इसमें न्यू चीज़ें आप लोग को देखने. फर्स्ट ऑफ ऑल सब तक मैंने आपको बता दिया. ओके, हियर यू कैन सी म के ऊपर ग है.
सो ये जो ग है इसका मतलब ये होता है कि जब म से आप लोग डायरेक्टली रे में आओगे, म से जब रे में आओगे तो आप लोग एक ग की टचिंग देके आओगे, इसे हम लोग कर्ण स्वर बोलते हैं। आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स। सो ये है हम लोगों का, जब तीव्र म से रे में आएंगे तो बीच में हम लोग ग का यूज़ करते हुए आएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ इन द सेकेंड आलाप यू कैन सी कि नी रे के नीचे एक लाइन टाइप की है और ग म के नीचे भी एक लाइन टाइप की है, विच इज़ कि आप ये दो स्वरों को जल्दी गाएंगे, दैट इज़ नी रे ग म। अगर हम लोग नॉर्मली गाते हैं नी रे ग म ऐसे गाते हैं, बट नो, जब नीचे एक लाइन टाइप की होगी तो यू विल सिंग इट फास्टर देन नॉर्मल, ठीक है। एंड इन थर्ड आलाप यू कैन सी कि प के ब्रैकेट, सो प में कुछ हरकत होगी, उसको आई विल टीच यू व्हेन आई गो थ्रू द थर्ड आलाप। एंड सी इसमें भी ऊपर ग लिखा है, मीन्स प से जब आप रे में आएंगे तो वो आप ग की टचिंग देते हुए आएंगे, ओके। सो लेट अस बिगिन विद द आलाप। फर्स्ट वन, आलाप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही धीरे से स्लोली यू हैव टू सिंग, एंड मतलब आपको बहुत ही मन से आलाप गाना पड़ेगा, ओके। सो लेट अस बिगिन। सा नी ध सी, मंद्र सप्तक। आई सेड कि स्वरों के नीचे जब डॉट हो तो उसको हम लोग मंद्र सप्तक बोलते हैं। सी एम कमिंग डाउन द ऑक्टेव, डाउन द मध्य सप्तक, ओके। सा नी ध नी रे सा नी रे ग, सी वाली स्वर, ग रे ग रे नी ध नी रे ग रे मा ग। हम लोग ने म ग ये डायरेक्ट आए, बट इसमें म रे आना है और ऊपर ग लिखा हुआ है। इसमें हम लोग ने डायरेक्ट आया म ग, लेकिन इसमें हम लोग को कैसे आना है, म से डायरेक्टली रे आना है, बट ग की टचिंग होती है। नाउ सी हाउ, म रे ग म रे ग रे, ऐसे आ रहे हैं, बट हम लोग ग नहीं बोल रहे, जस्ट हम लोग उसकी टचिंग दे रहे हैं। म ग, दिस इज नॉर्मल। म रे ग रे नी रे सा। So this was first alap again. सा नी ध नी रे सा नी रे ग रे ग रे नी ध नी रे ग रे म रे ग रे नी रे सा। Now I'll sing all the alap once only, okay? You can listen it in repeat mode if you want. Now second one, ni re ga re ga ni re ga re ni dha, मंद्र सप्तक, नी रे सा नी रे ग म, सी फास्ट, नी रे ग म नी रे नी म ग ग रे नी ध नी रे सा।
this was second. Third, ga re ga ma pa pa ma ga re ga pa ma ga ga ma ga pa. सी ब्रैकेट में कैसे हरकत लेंगे, पा रे, आई एम ऑल्सो मतलब टच आ रही है ग की। प को हम लोग ने कैसे गाया, जो ब्रैकेट में था, पा रे ग ग म प म ग ग रे ग रे नी रे सा। सो यू अंडरस्टूड। कोई भी स्वर में जब ब्रैकेट लगा हो तो वील सिंग इट पा पा लाइक दिस। ओके, नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन, मदनी सा। सी यू कैन सी एस एस, ओके, इट इज कॉल्ड अवग्रह। म्यूजिक में इसको अवग्रह बोलते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू पॉज फॉर दैट नंबर ऑफ टाइम्स। तो सा के बाद 3 है, 3 टाइम्स है, तो यू हैव टू पॉज फॉर 3 टाइम्स। मदनी सा नी रे, सी दिस इज तार सप्तक, नी रे सा नी रे गा गा रे नी गा रे सा नी नी दा पा म दा नी सा नी दा पा म गा गा रे। दिस इज मंत्र, नी द नी रे सा। Okay, so these were the alaps, 4 alaps. I hope you like the राग। एंड आपको पता होगा कि इस राग में काफ़ी सारे गाने बने। अगर आपको आलाप गाते वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गाना, तो ऐसा लग रहा है ये सुर सुनने में इस गाने से मिलता जुलता है, दैट मीन्स कि वो गाना कहीं ना कहीं इस राग से रिलेटेड होगा। इफ़ यू फाइंड एनी सॉन्ग ऑफ दैट सॉर्ट, प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड बी हैप्पी टू लिसन कि एटलीस्ट आप लोगों ने सुना और एंड यू ट्राई टू टू फाइंड आउट, टू एक्सप्लोर। ओके, so I hope you liked today's class, and this was all about Saptak and Rag Yaman. Not yet, you have not completed Rag Yaman yet, you've just done Alap, Aro, Avro, Pakad. Now in the next class I will teach you Bandish or Swar Malika, and then the further things. Okay, I'll let you know afterwards. So I hope you like this session. Hope to see you soon. Bye, take care.